आप जरा ध्यान से बोलिएगा, मैं भी सेक्शन 36 ओल्ड सीआरपी से रहने वाला हूँ। एएसआई या एसआई से सैल्यूट खाने के लिए वर्दी पहनी हुई है। देन फाइन, आप क्या हमें धमकाने के लिए बैठे हैं कि साहब एनएसजी देख रही है, एनआईए देख रही है? अरे आपको नहीं देख रही क्या? और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं उनकी भवन से, तो आप हमें कैसे धमका रहे हैं? कोर्ट जब ऑर्डर करती तब आप जागते हैं। आप कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर हम भी आपको डायरेक्शन दें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। तो मैडम एक 2 लाइन का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिख देते आप? ये सर आपके डायरेक्शन के बाद ही हमको बहुत सारी चीजें क्लिक कर पाते हैं। अच्छा मैडम, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपके लिए सहारा दें कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है? मैडम जरा आप जरा ध्यान से बोलिएगा, मैं भी सेक्शन 36 ओल्ड सीआरपी से रहने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मात्र एएसआई या एसआई से सैल्यूट खाने के लिए वर्दी पहनी हुई है, then fine, make a statement. I will not put any further question to you. Right? When on every day their arguments start with a statement that matter was also investigated by NIA and NSG. What superior officers were doing, I will come at a later stage. Now you have made a statement that only when I took up the issue that you woke up. Right? Then why you people are regularly making a statement with an underlined words that this matter was also investigated by NSA and NIA and NSG when the senior police officers are not ready to look into the case diary? आंसर चाहिए मुझे मैडम। आप क्या हमें धमकाने के लिए बैठे हैं कि साहब एनएसजी देख रही है, एनआईए देख रही है? अरे आपको नहीं देख रही क्या? और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं उनकी भवन से, तो आप हमें कैसे धमका रहे हैं? देखिएगा अपनी एक कैफियत डायरी की, उसमें पूरी कैफियत में कौन से वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। दिखाइए जरा कैफियत मैडम को, ऊपर की सेकंड पेज। और आपके काउंसिल हमेशा स्टार्ट करते हैं सर एनएसजी हैड इन्वेस्टिगेटेड, एनआईए हैज इन्वेस्टिगेटेड, व्हाट यू पीपल आर डूइंग? It is unusual case, right? For what the senior police officers are sitting. You're 110% right. On the last day, when your so-called IU, he appeared, my first reaction after looking at him was that he will not be able to investigate at all. Because I know it requires some sort of expertise and intelligence. And the blank face which he was having, my first reaction was, ये कुछ नहीं कर पाएगा. Unfortunately, so-called senior police officers who are under duty as per section 36 to give direction to the subordinates are equally at the same level. High Court से जब तक question marks नहीं उठेंगे, you people will never woke up. That's true. Is it not an alarming situation? It is, sir. It is, sir. But my humble request. But one thing is clear, madam. Sir. You are not trying to hide your inefficiency. Sir, I'm just. But therefore, I will not record. Therefore, I will not record anything. Sir, so kind of you, sir. Just wanted to know, just enlightenment of court, sir. Okay, madam. Fine. I can become an investigating officer. No problem. Sir. Just a minute. Whether the court is expected to act independently or can act as a prosecutor also. What is the role which is expected by a society? I am not talking about the lawyers. By the society from a court. उनको पता चल जाए कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है, अब तो कन्विक्शन हो नहीं होना है, चाहे कुछ भी करो. राइट? क्योंकि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है ये कोर्ट से पूछते हैं और कोर्ट करवाती है इन्वेस्टिगेशन. आप हम लोगों की पोजीशन को मैलाइन करने के लिए क्यों तुले हैं? Which is otherwise also not expected from the court.
I have not said it is not the duty of the court. Even it is not expected from the court either to speak against you or against the defense. आपके एसपी को यह समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इस लायक नहीं है. मैं उस आदमी की एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ. Don't misunderstand me. You have also realized that this matter requires some sort of specialization. It cannot be done. Application internally, departmentally also, sir. We have asked. I am least concerned in what manner the investigation is to be done. Only after looking at the orders of the court, if your department has woken up कि नहीं यार ये तो कुछ मैटर है और कोर्ट एनआईए और एनएसजी के नाम से डर नहीं रही है. Sir, we are trying. Investigation is on, and we are asking from so many other agencies also because it's a question of explosive. तो जब explosive की बात आती है सर तो government agencies के अलावा तो कोई और कर नहीं रहा है इसमें. So हम देख रहे हैं लेकिन सर अगेन जैसा मैडम आप कुछ नहीं देख रहे हैं. क्या ट्राई करेंगे? जब तक हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास नहीं किया बेल का तब तक आप लोगों को तो लगा था कि हमने कह दिया है कि इनको अंदर कर दिया तो कोर्ट तब अंदर करेगी और एनएसजी का नाम देख के तो बिल्कुल ही डर के मारे अंदर कर देगी. मैडम आप लोग डरते होंगे, एटलीस्ट हम नहीं डरते. NSG sir is for just rescue. Why every time it is being underlined by your IO? Just wanted to attract the attention of the court. And what about the police department? Madam, I am not concerned about NSG NIA. If you feel that if the matter has been handled by NSG also, therefore it is a serious matter, then what about you? Tell me. I am asking that question to you, not why you are telling me that it has been done by NSG also. Just for rescue. Fine. Why you are putting that line with the underline words के साथ ये देखिए. और आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए. You are trying to draw the attention of the court कि सब बहुत serious matter है. वो तो मैं थोड़ा सा लाइटर रखने में कहता हूँ कि डरा रहे हैं. आपका ये you are expressing it is a very serious matter, right? अच्छी बात है मैडम, अपना बिहेवियर बता दीजिए. आपको सीनियर अफसरों को कुछ नहीं मालूम है, आपके आईओ को कुछ नहीं मालूम है. कोर्ट जब ऑर्डर करती तब आप जागते हैं. आप कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर हम भी आपको डायरेक्शन दें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है. तो मैडम एक 2 लाइन का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिख देते आप? If you are putting a question mark to your ability, then give way to some other. मैडम कुछ भी हुआ हो, ऑफेंस हुआ है, बस दैट इज ऑल. आप कुछ नहीं पकड़ पाए अभी तक. क्या ट्राइंग बताइए ना, क्या क्या किया. मैं आपको बोला सर क्या हुआ जब वो ब्लास्ट हुआ है सर तो उसके बाद में एनआईए और एनएसजी इज नॉट कॉल्ड बाय आवर डिपार्टमेंट. दैट वाज देयर डिस्क्रिप्शन टू कम. मुझे मालूम था कि इनएफिशिएंट पुलिस है. उसको देखते सर सेल्फ उन लोगों ने जो कोई प्रॉब्लम नहीं. And we are not supposed to like question them, so we are not asking any question from them. That's an agency. Madam, I have not repeatedly said about NSG NIA because I have said repeatedly because you people are trying to project against. Not intention at all. Sir. Madam, please read out that cafe. Sir, I'm sorry if it is so. Why sorry? On one hand, you are saying that you are not concerned with NSG NIA and they had come on their own. We are not supposed to ask them. They are not supposed to grill you. Eh? That discretion is not in district level officers, actually. I am least concerned. It is your internal matter. Whether you are answerable to them or not, it is none of my headache. Don't tell me. एक तरफ आपके लिए so called ड्रामा करना कि बहुत सीरियस है. दूसरी तरफ आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करना है. Sir, we are very much aware. Sir, क्या किया मैं पूछ तो रहा हूँ मैडम. सर जो ब्लास्ट हुआ या देना यहाँ सीआरपीसी ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? पुरानी सीआरपीसी दीजिएगा जरा मैडम को. सर दो एजेंसी. मैडम प्लीज डोंट टॉक अबाउट दोस एजेंसीज. सर मैं कोर्ट के और एयरपोर्ट के बारे में बताना चाह रही थी जो जिनके पास हमने कम्युनिकेशन किया था सर. मैडम फॉरगेट अबाउट एनआईए एंड एनएसजी. नहीं सर एनआईए नहीं बोल रही मैं. ओएफके सर जो. हाँ तो इसलिए हम दोनों छोड़ देंगे. हम ना
कुछ है सर जहाँ से हमको सस्पेक्टेड अप्रोच जगह लगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको वो ने कह दिया कि क्रेटर बड़ा है, लाइकली टू बी ब्लास्ट ऑफ बिगर बॉम्ब। समझ में आया सर? सुनिए, लाइकली टू बी अ ब्लास्ट ऑफ अ बिगर बॉम्ब। तो आप लोग शांत होकर बैठे। मैडम देन पॉइंट आउट व्हाट स्टेप्स यू वर टेकन बाय यू। आपके सर हिलाने से एटलीस्ट आई विल नॉट गेट प्लीज्ड। आप तो ये बताइए किया क्या आपने उसके बाद, और वो जरा लेटर जरा जोर से पढ़ दीजिएगा, वेदर इट वाज एन अथॉरिटेटिव लेटर और इट वाज जस्ट एन इंप्रेशन ऑफ द अथॉरिटी हु हैड साइन दैट। ऐसा लगता है कि वो चूंकि क्रेटर बड़ा हुआ है इसलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बॉम्ब होगा, और इसलिए ऐसा लगता है कि जो हमने सप्लाई नहीं किया। नहीं सर, एक जो बीडीएस का टीम का एक रिपोर्ट है सर, वो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट को क्लियर कर रहा है सर। उसके बाद जब वो एक्सप्लोसिव क्लियर हुआ था सर, तो वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट दो मेजर एजेंसी जिस पे हमारा डाउट था। एक आमना बैतूल में है सर, और दूसरा अपना ओएफके है सर जबलपुर। दोनों से बात करके दोनों की एसओपीज मंगाई थी, और उस एसओपीज में दे मेंशन कि अगर हम ये दे रहे हैं तो सामने वाले का भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो हमको अगर उसने कोई ऐसा एक्सप्लोसिव हुआ तो वो रिवर्ट करेगा। दैट इज द उन्होंने क्या रिवर्ट किया मैडम, सर क्या जरा बता दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें रटे हुए केसेस, और आप लोगों को तो जो हुआ अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। अब आप लोग तो मजे लेते हो दफ्तर में बैठ के। नहीं दिखा वो एफके का लेटर निकाल लीजिए जिसमें लिखा है कि लुकिंग टू द साइज ऑफ द क्रेटर, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो कि हमारे द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है। तो ये ऐसा लगता में उसके बाद आप शांत हो गए। सर वी रोट मैडम प्लीज पॉइंट इट आउट फ्रॉम द डायरी। मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, हम वॉलंटरी आए हैं। जो अभी लिखा मुझे 1 जुलाई या 2 जुलाई जब मैंने बेल दी है उसके बाद के लेटर्स नहीं देखने, मुझे उसके पहले के देखने हैं, ताकि जो मैं बार बार जबलपुर पुलिस की एफिशिएंसी को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ताकि अब आपके मुंह से भी सुन तो चुके हैं कि साहब ये तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है। बताइए सर आपने क्या लेटर दिए। जैसे सर हमने एक लेटर पहले लिखा था जिससे क्या है मैडम? एमएसटीसी की साइट को लिखा था सर। तो मैडम साइट से हमें मतलब नहीं है, मैं ओएफके की बात कर रहा हूँ। मतलब एक्सप्लोजिव से रिलेटेड तीनों ही जगह बात हो रही है सर। बहुत अच्छे किया ना आपने। हाँ जी मैंने ओएफके से आपके पास जब आ गया है, और अमला वाला भी पूछूंगा मैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने सप्लाई नहीं किया है। अमला ने तो सीधा मना कर दिया। दोनों ही यूनिट्स मना तो कर रही है, लेकिन वो देखना तो पड़ेगा। हम मैडम देखना पड़ेगा तो जगाना तो हमें पड़ रहा है, उसकी बात क्या कर रहे हो? सर इसमें डिनाई नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप डिनाई तो करिए, तब तो हमें लिखने में मजा आएगा। लेकिन ये जैसा कि वी आर ट्राइंग, ये मैं कैसे कुछ नहीं कर रहे मैडम, सॉरी, डोंट गिव अ सर्टिफिकेट टू योरसेल्फ। अब तक मैडम जरा 36 देखिए सीआरपीसी का। अब जरा अब आप लोगों के भी सीरियसनेस को देखें अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन जबलपुर।